I hope all of you are staying safe with your family in this time of pandemic. But due to this pandemic, most of the students are not able to give their IELTS or PTE exam due to lockdown in India. So what we can do instead? We can give out Duolingo test. Duolingo is a dual language based test which helps out students to get admission into Canada, US or UK. As of now, we have 400 plus universities who are accepting this test as a base of admission. But what is Duolingo? Duolingo is an English test which takes 1 hour to complete. It has all the four modules: listening, writing, reading, and speaking, but they all are computer based. So, how can you train for that? How can you get kind of help? What kind of help would you need? So, with IELTS with Simul, we explain everything to you, like how you can give the test, how you can prepare, and everything. But first of all, let's take a look at what this test is, what are the modules in this test, and how you can ace this test. So before we move further, we need to understand the main feature of this test. मतलब इस टेस्ट में आता क्या क्या है, that हमें किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, right? So पहला फीचर आता है हमारा मिक्स स्किल्स का. In this test, we get to write about writing, listening, reading and speaking. चारों मॉड्यूल कवर होते हैं इसके अंदर in a very short time. Secondly, this test is very adaptive. Real time things will be there. जो भी आपके टेस्ट होंगे, they will be on real time based things. ऐसा नहीं है कि पुराने 100 साल पुरानी चीज़ें 20 साल पुरानी चीज़ पूछेंगे, नहीं, करंट चीज़ें पूछेंगे and we have to answer according to that. Then comes our third point, which is short term. जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, they will be either for 1 minute or 2 minutes, not more than that. अगर we talk about speaking and writing, which comes into the last, तो then you get around 3 to 5 minutes for a task. Otherwise बाकी सब टास्क 2 से 3 मिनट के ही मिलेंगे, इससे ऊपर का टास्क कोई नहीं होता इसके अंदर. Then major thing, सेक्शन स्किपिंग. हम IELTS और PTE में क्या करते हैं कि अभी इस सेक्शन को छोड़ देते हैं एंड देन वी विल कम बैक टू इट एंड डू इट. बट Duolingo में यू कांट स्किप अ सेक्शन, एंड इफ यू डू स्किप अ सेक्शन थिंकिंग दैट कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम अगले सेक्शन के लिए मिल जाएगा, प्लीज डोंट डू दैट. यू डोंट एक्स्ट्रा टाइम. Last but not least, this test is very easy. And if you are scoring somewhere around 4.5 to 5 months in IELTS test, आप easily इस टेस्ट को ace कर सकते हो. इस टेस्ट में टोटल पॉइंट्स होते हैं 160 एंड अगर आपके 5 बैंड आ रहे हैं तो यू कैन इजीली स्कोर 130, 140, which is more than enough for getting admission into a reputed institute. So now we are clear with the basic features of this test. So now it's time to understand some ground rules. First one is you need to bring a government ID with you. Either you can bring your passport or you can bring your driver license with you. Second one is you can't use the headphones into this test. Headphones are not allowed. Third one is there should be no one when you are giving this test. You should choose a room where no one else is available. Like आपको एक ऐसा रूम लेना होगा जिसमें कोई भी अवेलेबल नहीं होगा आपके साथ, so you can't cheat. Then the fourth one is no note taking. What happens in IELTS and PTE, we make some notes, we write down answers to write them later, right? But into this Duolingo, you won't get any time to do that, so that's why you need to put everything on your computer screen right away. Last rule is no looking around. When you are giving the test, you can't look here or there from your screen. If you do so, your test can be cancelled. So make sure when you are giving this test, you look straight into your screen, nowhere else, as this is for only one hour, so you can surely do that. So now we are clear with these ground rules and main feature of this test. It's time to move to the questions. What kind of questions we will getting into Duolingo, what kind of answer we need to give, and how we can ace this test. So let's start. So the first question you have in your screen right now is type the missing letter to complete the text below. So in this question आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा and उसमें कुछ fill in the blanks होंगे. They are very simple and you need to fill that. लेकिन मेक श्योर जब भी आप इस टेस्ट को कर रहे हो, इस क्वेश्चन को कर रहे हो, अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में श्योर नहीं हो, आप इस स्पेलिंग के बारे में श्योर नहीं हो, उसे ऑन दैट पॉइंट यू कैन लीव. मेक श्योर आप पहले जो इजी हैं उन्हें कंप्लीट करो. होता क्या है, इट्स अ पैराग्राफ, यू विल बी एबल टू मेक सेंस, राइट? तो अगर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फिल इन होगा तो वी विल बी मेकिंग सेंस इजीली, एंड जो बाकी डिफिकल्ट वन है वी विल बी एबल टू डू देम एज वेल. Now comes our second point, right? The second kind of question that comes into it is select your real words.
आपको यहाँ पे नो रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी, ये नो कुछ वर्ड्स होंगे, बट इसमें से सारे के सारे वर्ड्स नहीं होंगे. There will be some real words, some will be fake words. So make sure when you are giving this test, don't select the word if you are like thinking कि अच्छा ये sound लग रहा है, let's select. Don't do that. They will be putting out some words which will be sounding like the real one, but they won't be there. So until unless you are not sure, don't select that one, right? And second thing, best thing is you can hear the word as much as you want. अगर आपको एक word 5 बार 10 बार 15 बार सुनना है, you can do that. No one is stopping you from doing that. Third point is only select those words जो आप sure हो कि हाँ ये words हैं. But one more thing, you will be getting a time for this one as well. ऐसा नहीं है कि मैं 15 मिनट इसके ऊपर लगाऊंगा. You will be getting around 2 minutes to get this task done. This question done, not this task, right? So this is it. Then comes the third type of question. These are like the statement you will hear. This will be for your listening test. This kind of listening, right? So what happens into this test? You will be played a recording and you have to give a right answer according to that. But what happens in PTE, you can only hear the recording once, and in IS as well. But in Duolingo, you get chance to hear this recording 3 times. So how to ace this one? So simple. First, play it first time, then whatever you hear, write as much as you can. Second time, do it for proofreading. Like okay, मैंने आधा ठीक लिख लिया है, कितना ठीक है मेरा उसमें से, that will be done. And the last one, play it third time, so proofread. Proofread करो, check करो कि यही था, S नहीं था कहीं पे, S था, क्या था वहाँ पे, मैंने ठीक लिखा है नहीं. So this is how we can do this question, right? Then comes our next question. Is select real word. अब इसके अंदर if you will see there will be spellings, right? अब यहाँ पे आप देखो is a provocation, universally, stereo, decad, personal, courageous, idealistic, ऐसे words हैं, right? अब अगर हम देखें champ is not a word, charity is not a word, like universally is a word, starler is not a word, restart is a word, specialist is a word. So make sure जब आप इस टेस्ट को कर रहे हो, इस क्वेश्चन को कर रहे हो, you put out close attention to the spellings. Spellings का ही खेल होता है इसके अंदर. Either they can misplace 1 or 2 letter from this one, and you can like go wrong with this one. And make sure you only select those words you are sure about, nothing else. Alright. Then comes our next question. It's like write one or more sentence based on the image that has been provided to you, right? It's like describe an image. PTE में भी हम ये करते हैं, right? हमारा IELTS के अंदर भी होता है, बट IELTS में टेस्ट का ये सेक्शन बहुत बड़ा होता है, बट इसके अंदर वही 1 मिनट का टाइम मिलेगा हमें इसके लिए. So when you see a image, make sure जब आप इसके बारे में लिखोगे, you need to be very specific. You need to write a complete sentence, right? And make up the stories, show off your vocab. आपके पास कितनी vocab है इसके अंदर, make it out, right? 1 मिनट है. अब for example let's say इसके अंदर parade है, right? We can say this is a parade playing some musical instruments. हमें हमारी vocab दिखानी है इसके अंदर, right? Then comes our next question. Record yourself. This will be your speaking part, right? टाइम हमें वही 1 मिनट मिलेगा. सो होगा इसमें क्या, आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, लिखी होगी आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको वो रीड करनी है. बट मेक श्योर टू फॉलो दीज 3 रूल्स विच आई एम अबाउट टू टेल यू. फर्स्टली, मेक श्योर आप फटाफट अपने स्टेटमेंट को रीड करो. डोंट मिस रीड इट, प्रॉपरली रीड करना है, बट करना फटाफट है. देन सेकेंडली, याद रखो व्हाट हैपेंस इन पीटी व्हेन वी क्लिक ऑन रिकॉर्ड बटन, हमारा टाइमर दोबारा स्टार्ट होता है. बट ड्यूलिंगो में ऐसा नहीं होता. ऐसा है कि आपको 1 मिनट मिलेगा. अगर आपने 30 सेकंड के बाद ये सोच के रिकॉर्ड पे क्लिक किया है कि अच्छा मुझे अब 1 मिनट पूरा दोबारा मिलेगा, वो नहीं मिलेगा. आपको उस 1 मिनट के अंदर ही सारा कुछ करना है. एंड इट वोंट बी 1 मिनट एवरी टाइम. ये आपको आधा मिनट भी मिल सकता है और 1.5 मिनट भी हो सकता है. सो दिस इज हाउ दिस टेस्ट विल बी डन. एंड मेक श्योर आप जैसे हम पीटी में करते थे कि हम एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपने, जैसे क्यू कार्ड्स में आयट्स के हम प्रिपेयर कर लेते हैं, लिख लेते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आपको स्क्रीन पे देख के ही बोलना है उसे. सो नाउ कम्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट्स क्वेश्चन नंबर 9, राइट? लेट्स टाइप आउट द स्टेटमेंट दैट यू हियर. ये अगेन हमारा लिसनिंग का आ गया.
बट इसमें ऐसा होगा कि जो भी स्टेटमेंट बोली जाएगी आपको वो दोबारा से लिखनी है। सो इसको एस कैसे करना है, ये टेस्ट ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है, बट इसको एस करना बहुत सिंपल है, राइट। सो आप 3 बार सुन सकते हो, सेम लाइक बिफोर, जैसे हमने पहले देखा था स्पीकिंग के अंदर हम 3 टाइम सुन सकते थे, राइट। अगेन काम करना है कि आप जितना ज़्यादा लिख सको पहली बारी के अंदर उतना लिखना है। सेकेंड टाइम में हमें उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है सेकेंड रिकॉर्डिंग के अंदर, एंड थर्ड टाइम में हमें प्रूफ रीड करना है। जैसे हमारे पहले एक स्पीकिंग की गई थी, लिसनिंग की गई थी हमारी, सिमिलरली इसमें भी हम 3 बार सुन सकते हैं उसे। सो फर्स्ट टाइम ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज यू कैन, सेकेंड टाइम कंप्लीट द सेंटेंस, थर्ड टाइम प्रूफ रीड इट, मेक श्योर इसमें कोई एस ई एस की गलती ना छोड़े यहाँ, राइट। देन कम अवर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एन इमेज। सो पहले क्या था, हमें उसके बारे में लिखना था, अभी हमें बोलना है, इट्स पार्ट ऑफ योर स्पीकिंग। सो होगा क्या, अभी हमें 3 सेकंड्स मिलेंगे सिर्फ एक इमेज के बारे में बताने में, राइट। सो हाउ टू डू इट, आपको कोई कहानियां नहीं बनानी है इसमें, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, वट एवर इज इन योर स्क्रीन उसको सिंपली बता देना है। सो इफ यू आर सीइंग अ कैट इज देयर, सिंपली से अ कैट, और इफ यू कैन से दिस इज अ कैट, बट जो आई डू इट्स अ कैट, दैट्स इट। बट अभी इसमें होगा क्या, इसमें यू डोंट नीड टू क्लिक नेक्स्ट और एनीथिंग, आप सिंपली आपकी स्क्रीन के ऊपर चलेगा, आपको बोलना है जैसे क्वेश्चन दिखाया जाएगा, एंड देन क्लिक नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी वी कम टू द फाइनल पार्ट ऑफ दिस टेस्ट। फाइनल पार्ट में देयर इज राइटिंग एंड देयर इज स्पीकिंग। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट्स फॉर राइटिंग, राइट। इसमें आपको 5 मिनट मिलेंगे लिखने के लिए, एंड यू नीड टू राइट एज मच एज यू कैन। जैसा हमारा आईएल्टीएस के अंदर होता है, हमें पहला क्वेश्चन मिलता है लिखने के लिए राइटिंग पार्ट का, टास्क 1 या टास्क 2 होते हैं जैसे, सिमिलरली इसके अंदर भी हमें एक स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाएगी, हमें उस स्टेटमेंट का रिस्पॉन्ड करना है कि क्या है उसने लिखा, वो उस चीज़ में क्या बताना चाहता है, वो हमें उसको एक्सप्लेन करके लिखना है। सो इसको एस करने के 3 रूल्स हैं। मेक श्योर आप अपने लेक्सिकल रिसोर्सेज, जिनको हम वोकैब भी कहते हैं, अपनी वोकैब दिखाओ उनको। आप एक वर्ड को दोबारा रिपीट मत करो, एक वर्ड के सिनोनिम्स यूज करने शुरू करो। इससे क्या होगा, हमारे जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। देन सेंटेंस अलग अलग यूज करो, डोंट मेक कि मैं एक ही सेंटेंस को आफ्टर दैट, आफ्टर दिस, आफ्टर दैट, आफ्टर दिस करता जा रहा हूँ, डोंट डू दैट। अलग अलग सेंटेंस यूज करो, मोर यूज करो, कंजक्टिव्स यूज करो, कनेक्टर्स यूज करो। देन कम्स अवर थर्ड पॉइंट। अभी 5 मिनट मिले हैं, 4 मिनट में लिखो, जी भर के लिखो एज मच एज यू कैन। लास्ट 1 मिनट प्रूफ रीड करो। मेक श्योर आप कभी भी इस टेस्ट को दे रहे हो, प्रूफ रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्पेलिंग ज्यादा थिंग जिनके हमारे पॉइंट्स घटेंगे भी और पॉइंट्स मिलेंगे भी हमें। सो मेक श्योर यू प्रूफ रीड एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू हैव रिटन, राइट। सो once we are done with this test, just click next and our next question will appear. Similarly, this is also same thing, but this is for you need to speak somewhere around 30 seconds for a question. It's same like cue card जो हमें आर्ट्स के अंदर मिलते हैं। So इनको एस कैसे करना है, सिंपल है, लिसन केयरफुली जो क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है उसके अंदर, राइट। इसमें ऐसा नहीं है आपको पढ़ के आंसर देना है, आपको बोला जाएगा उस क्वेश्चन को, आपको उसको सुनना है, उसे अकॉर्डिंगली आंसर करना है। देन यूज एग्जाम्पल्स, मेक श्योर कि आप एग्जाम्पल्स यूज कर रहे हो। अगर मुझे कोई फ्लावर के बारे में पूछा गया है या मुझे किसी प्लैनेट के बारे में पूछा गया है, मेक श्योर यू स्टार्ट पुटिंग अप एग्जाम्पल्स, जितने लिख सकते हो, बोल सकते हो उतने बोलो, राइट। देन सेम एज लास्ट, वेरियस टाइप ऑफ सेंटेंस, एक ही सेंटेंस बार बार मत यूज करो, अलग अलग सेंटेंस यूज करो। आपकी वो कैब दिखेगी, ऑब्वियसली आपकी वो कैब दिखेगी तो आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे। होगा क्या, इसमें आपको साथ में जैसे क्यू कार्ड में हमें क्वेश्चंस पूछते थे, यहाँ पे लिखे होंगे, आपको अकॉर्डिंगली उसका आंसर भी करना है साथ में। सो नाउ कम्स द फाइनल पार्ट, जो सबसे मुश्किल पार्ट है इस टेस्ट का, योर इंटरव्यू राइटिंग एंड स्पीकिंग का, राइट। इसमें क्या होगा, व्हेन यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन का सबसे पहले ऐसे आएगी, इसमें आपकी इमेज की जगह पे आपके वेबकैम के थ्रू आपकी इमेज आएगी यहाँ पे। सो मेक श्योर आप दिख रहे हो वहाँ पे, राइट, यू आर सेंटर एंड एवरीथिंग। व्हेन यू क्लिक नेक्स्ट, सो दिस विल बी अ वीडियो फॉर स्पीकिंग। यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ मिलती है कि हमें 2 टॉपिक्स मिलते हैं, राइट।
सो हमें दो टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक चूज करना होता है। इससे होगा क्या, दो टॉपिक देने का मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास थोड़ा सा इजीनेस होगा कि मैं जिस टॉपिक में कंफर्टेबल हूँ मैं उसको बोलूँगा, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, आपको 1 से 3 मिनट के बीच में बोलना ही बोलना है इसके अंदर। जैसे हमारे आयट्स के अंदर हम इंट्रोडक्शन देते हैं, हम कहते हैं हम 1 से 2 मिनट के लिए बोले वहाँ पे, सिमिलर यहाँ पे 1 से 3 मिनट के अंदर हमें आंसर देना है उस क्वेश्चन का, राइट। इसको कैसे एस करना है, ये पार्ट जो है टेस्ट ऑटोमेटिकली ग्रेड नहीं करेगा, मेक नोट ऑफ दिस। इस टेस्ट का आपके टेस्ट के स्कोर के ऊपर नहीं क्वेश्चन पड़ेगा, बट जब आप इस टेस्ट को अपनी यूनिवर्सिटी को सबमिट करोगे, उस यूनिवर्सिटी को ये टेस्ट भेजा जाएगा। सो ये जो टेस्ट आपकी वीडियो इंटरव्यू है, ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इसके पॉइंट नहीं जुट रहा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, नहीं, इसको करना बहुत ज़रूरी है। एज ये एडमिशन के टाइम पे बहुत हेल्प करता है। अगर आपने इस टेस्ट को एस किया, आपने टेस्ट दिया इसके अंदर, व्हाट हैपेंड इज आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं। द लास्ट हमने 3 स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाया है एंड दे गेट अराउंड 25% to 30% टू रिबेट इनटू देयर यूनिवर्सिटी फी फॉर 1 ईयर। सो मेक श्योर आप इस इंटरव्यू को हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो और इसको बोलो, राइट। स्पीकिंग के बाद हमारा इसके अंदर सिमिलरली हमारा राइटिंग का भी इंटरव्यू होगा। अब इसमें होगा क्या, उसने सेम 2 टॉपिक देगा, बट आपको कैमरा के सामने बैठ के लिखना है इसके अंदर। ये भी यूनिवर्सिटी को ही जाएगा, ग्रेड नहीं होता है, टेस्ट में मार्क्स नहीं लगेंगे, बट अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इन 2 चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा। So this is our Duolingo test and that's it. अभी into next slide I will show you कि ये सर्टिफिकेट कैसा दिखता है इसका and what are the things that will be shown into your certificates. So as you can see on screen, आपका जो सर्टिफिकेट होगा कुछ ऐसा होगा, इसमें आपके पॉइंट्स दिए होंगे, राइट। नीचे लिखा होगा आपका लेवल क्या है, as I got 157 points out of 160. So आई एम एक्सपर्ट इन इंग्लिश। साथ में बताया होगा कि आप किस किस फील्ड के अंदर यू लाइक मेजर, आपकी राइटिंग स्पीकिंग इसमें आप थोड़े लूज थे या किस में आपने एस किया है, वो सब इसके अंदर बताया होगा। सो दिस इज Duolingo टेस्ट। इफ यू हैव एनी क्वेरीज एनीथिंग, मेक श्योर you comment down below and don't forget to subscribe for more videos into Duolingo or any other thing that is coming out. Thank you very much for watching.